स्वागत है दोस्तों स्टॉक पिक्स चैनल पर। दोबारा आपसे वीडियो के दौरान मिलकर बहुत ही खुशी हुई। आज हम आपके लिए दो बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लाए हैं। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे कैसे लेवल पे मिल रहे हैं आपको। वीडियो के अंदर जाने से पहले आज का इन्वेस्टिंग कोड बता देता हूं मैं आपको। और आज का कोड है समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंदर जाते हैं। और आज का हमारा पहला स्टॉक है एचर मोटर्स। HR Motor Limited, incorporated in the year 1982, is the listed company of the HR Group in India and a leading player in the Indian automobile industry and the global leader in the middleweight motorcycles. मिडिलवेट मोटरसाइकिल मतलब 250 टू 750 सीसी गाड़ी जो आता है उसको मिडिलवेट मोटरसाइकिल पे कंसीडर होता है। HR as a joint venture with Sweden's AB Volvo to create Volvo HR Commercial Vehicle Limited. VECV is engaged in truck and bus operations, auto component business, and technical consulting services business. It is the owner of the iconic Royal Enfield brand, which is focused on the mid-sized motorcycles. Classic, Bullet, Himalayan are some of the brands that come under the Royal Enfield brand. It is sold in the 60 plus countries globally. It also provides protective riding apparel, urban casual wear, and motorcycle accessories. Its commercial vehicle segment makes light and medium duty trucks, heavy duty trucks, buses, engineering components, and aggregates. It is also the manufacturer of medium duty base engines for Euro 4 requirements of the Volvo Group. Its Pithampur plant has the capacity to produce nearly 90,000 trucks per annum. Its phase 1 capacity expansion for the Bhopal plant is 40,000 vehicles per annum. Its VE powertrain plant is the first engine plant in India to produce a Euro 6 complaint based engine. The current capacity of this plant is 50,000 engines, scalable up to 1 lakh engines. It has 1889 dealers, that is 989 stores and 900 studio stores across 1550 cities. Its network has grown 3 times in the last 5 years. They are planning to add 600 more stores during the financial year 2022. It has 308 dealers, 27 distributors for its bus segment. It added 35 new stores across international market in the financial year 2019 to the financial year 2020, increasing its overall touchpoints to over 660 stores, including 77 exclusive stores and 585 multi-brand outlets. Domestic sales 91% in the financial year 2021, while international sales 9.1% in the financial year 2021, which was 2.8 in the financial year 2016. मतलब करीब करीब 6% का ग्रोथ दिखाया है 6 साल के अंदर। ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2018 में 8,965 करोड़ का सेल हुआ था और 1,960 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मार्च 2019 में 9,797 करोड़ का सेल्स हुआ है और 2,203 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और मार्च 2020 में 9,154 करोड़ का सेल्स हुआ है और 1,827 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और मार्च 2021 में 8,720 करोड़ का सेल्स हुआ है और 1,347 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और करंटली 10,045 करोड़ का सेल्स हुआ है और 1,593 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइचर मोटर का चार्ट पर लेके जाता हूं मैं आपको। ये है दोस्तों आइचर मोटर का चार्ट। जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो है 2380। प्रीवियसली मार्च 9 के आसपास हम ये आइचर मोटर नोट करके रखे थे और वेट कर रहे थे ये जो रेसिस्टेंस है 231, ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज होने के लिए। और रिसेंट टाइम्स में क्लोज हुआ है, उसने उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर वाला रेसिस्टेंस है 2360, उसको भी ब्रेक किया था और अभी एक नीचे आके एक बार टेस्ट हुआ था 25 मार्च को और अभी पॉजिटिव कैंडल पे क्लोज हुआ है 2360 को ब्रेक करके। कल और भी आगे बढ़ने का चांसेस है। और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। मार्च 24 में जो आरएसआई था वो 26 के आसपास आरएसआई था और प्राइस है वो सेम रेंज पे था प्राइस। और अभी जो करंट प्राइस का जो आरएसआई है वो है 44.11 का आरएसआई चालू है। तो आप एक चीज क्लियरली नोटिस कर सकते हैं वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। प्राइस जो मूव नहीं हो रहा है लेकिन आरएसआई बढ़ रहा है, यानी एक अपवर्ड मूवमेंट का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। नोटेबल है ये स्टॉक। हमारा एंट्री प्राइस जो रेकमेंडेड एंट्री प्राइस होगा वो होगा 2360 के आसपास हमारा रेकमेंडेड एंट्री प्राइस रहेगा। और हमारा जो पहला टारगेट जो होगा वो होगा 2526 के आसपास हमारा पहला टारगेट होएगा और हमारा स्टॉप लॉस 2301 का हमारा स्टॉप लॉस होएगा।
एचर मोटर ऑलरेडी ये 8 डे का ईएमआई के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। जल्द से जल्द ये जो टारगेट है इसको हिट करने का बहुत चांसेस है। एचर मोटर के बारे में फुल्ली अपडेटेड रहने के लिए हमारा चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, और भी हम बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए लाते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट है 2360, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर से बाउंस बैक बहुत बार विजिबल हुआ है। इस बार भी फिर से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस बैक के लिए, और टेस्टिंग भी किया था ये सपोर्ट को और टेस्ट पे पास हुआ है और पॉजिटिव कैंडल पे क्लोज हुआ है। आगे जाके एचर मोटर को और भी ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी सेकंड स्टॉक पर लेके जाता हूं मैं, और हमारा सेकंड स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। Britannia Industries is one of the India's leading food companies with 100 years of legacy and annual revenues in the excess of 9,000 crores. Britannia is among the most trusted food brands and manufactures India's favorite brands like Good Day, Tiger, NutriChoice, Milk Bikis and Marigold, which are household names in India. Britannia's product portfolio includes biscuit, bread, cakes, rusk, and dairy products, including cheese, beverages, milk, and yogurt. This company belongs to the Wadia Group, a reputed Indian business house who has presence in wide range of business segments like airlines, GoAir, Realty, Bombay Realty, textiles, Bombay Dyeing, and plantations and other businesses. Britannia is the market leader in the biscuit segment, and it accounts for more than 90% of the company's total revenue. The company has a wide range of biscuit portfolio across various categories like glucose, Marie, cookies, crackers, cream, milk, health, etc. The company sells the products under various iconic brands like Good Day, Tiger, Marie, NutriChoice, Milbikis, anymore. The company is one of the largest player in the organized bread market with an annual turnover of 1 lakh tons in volume and 450 crores in value. The business operates with 13 factories and 4 franchisees, selling close to 1 million loaves daily across more than 100 cities and towns of India. The company is working on developing differentiated products like atta pizza, cheese garlic bread, etc. Dairy products accounts for 5% of the total company's revenue. It sells cheese, beverages, milk and yogurt under this division, and the dairy products directly reach 1 lakh outlets. The segment witnessed the highest growth, especially in the cheese product, which grew 300% during the year, and the company is planning to start 5 new facilities, and to expand its Orissa plant, it will improve its back-end facilities by procuring 25,000 liters per day from 1,000 farmers in Maharashtra. The company performed well during the COVID crisis by following 80:20 rule, that the company is focused on 20% of the brands like Marigold, Good Day, Milk Bikis and NutriChoice, etc., which contributes about 80% of the company's revenue, put on priority list, which enable the company to streamline its productivity and increase the efficiency of the production. ठीक है दोस्तों, ब्रिटानिया का ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देख लेते हैं। मार्च 2018 में 9,914 करोड़ का सेल्स हुआ था और 1,004 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और मार्च 2019 में 11,055 करोड़ का सेल्स हुआ था और 1,159 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और मार्च 2020 में 11,600 करोड़ का सेल्स हुआ था और 1,403 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और मार्च 2021 में 13,136 करोड़ का सेल्स हुआ था और 1,864 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और अभी करंटली 13,717 करोड़ का सेल्स हुआ है और 1,509 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटानिया का चार्ट पर लेके जाता हूं मैं आपको। ये दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का चार्ट। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जैसे एचर मोटर का था सिमिलर वे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का भी है। अभी ब्रिटानिया करंटली 3094 पे ट्रेड हो रहा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज भी एक करेक्शन, शॉर्ट टर्म करेक्शन पे गया था और 20% डाउनफॉल पे नीचे आया था, और यहाँ पर से एक बाउंस बैक विजिबल था, और बाउंस बैक से ऊपर जाके 3394 का जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाया और रेसिस्ट होके नीचे आया, और नीचे आके एक बार ये टेस्ट कर रहा है। अभी इसका सपोर्ट जो है 3020 का सपोर्ट, इसको टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट करके आज डोजी कैंडल फॉर्म किया है। इससे पहला एक इन्वर्टेड हैमर भी फॉर्म किया था। आप देख सकते हैं जो रिसेंट टाइम्स का वॉल्यूम्स है वो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सिमिलर टू एचर मोटर यहाँ पर भी आरएसआई डाइवर्जेंस विजिबल है। 7 मार्च का जो आरएसआई था वो था 23.93 का आरएसआई, और अभी करंटली जो आरएसआई है वो है 34 का आरएसआई।
और प्रीवियस जो क्लोजिंग था यानी 7 मार्च का जो क्लोजिंग प्राइस था वो है 3153 का क्लोजिंग प्राइस, और करंट प्राइस जो है वो है 3094, यानी 50 प्राइस नीचे ही क्लोज हुआ है, लेकिन आरएसआई जो है वो बड़ा है। आप देख सकते हैं आरएसआई जो बड़ा है और प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो डाइवर्जेंस है वो क्लियरली विजिबल हो सकता है, आगे जाके प्राइस का एक अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का हमारा जो बाइंग प्राइस जो होगा वो होगा 3094, यानी करंट प्राइस हमारा बाइंग प्राइस होएगा, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 3020 का हमारा स्टॉप लॉस होएगा, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 3394 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट 3500 का हमारा सेकंड टारगेट होएगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का जो अभी करंट प्राइस है वो अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ा बाउंस बैक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा कंसल्टेशन होएगा मेरे को लग रहा है, थोड़ा कंसल्टेट होके ऊपर जाएगा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेंज है यहाँ पर आप बाय कर लीजिए और होल्ड करना, और 3020 का हमारा स्टॉप लॉस को कंसीडर कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे दो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। आप चाहे तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को होल्ड भी कर सकता है, ये एक मेजर ग्रोइंग कंपनी है। आप देखे थे सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा था, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को आप मंथली एसआईपी के थ्रू भी इंटरेस्टेड रहेंगे तो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कोई भी क्वेरीज रहेगा आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है उनके लिए भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।